Bismillahirrahmanirrahim. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal Campus online lectures. This lecture is for grade 5 English and we are doing unit number 21, which is a poem, The Coconut Grove. And this is fourth lecture for this unit, and we are going to learn about comparative and superlative of adverbs. And the other topic, the very new topic for you people we are going to learn in this lesson is onomatopoeia. So please open your English classwork notebook and prepare your classwork page. Then you will write down the index by writing serial number, date and topic. I hope that you all have brought your English students book, your English classwork notebooks and your complete stationery, and I am sure that you are listening all your lectures very attentively and carefully and completing all your works. So please open your English classwork notebook, English students book, page number 142. English students book, page number 142, where the topic is comparative and superlative of adverbs. Do you know what is an adverb? Do you already know that what is an adverb? Adverb is a word that modifies a verb or an action. ऐसा वर्ड जो किसी एक्शन को मॉडिफाई करता है, उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअली ये एक्शन परफॉर्म कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ. और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव का भी आपको concept है that comparative adverbs are used to compare two actions by adding are or er to adverbs. जब हम दो verbs को या दो actions को compare करते हैं तो हम comparative degree यूज़ करते हैं. जब हम एक group of actions को एक single action के साथ compare करते हैं तो उसके लिए हम superlative adverb यूज़ करते हैं. For comparative, for example, fast, we will add er with word fast and it will become its comparative degree faster. In the above example, faster is the comparative degree of the adverb fast. Superlative adverbs are used to compare three or more actions by adding st or est to the adverbs. And what are the three degrees of fast? These are fast, faster, fastest. Okay. In this example, fastest is the superlative degree of the adverb fast. There are some adverbs which take irregular forms जिनमें आप er या est ऐड नहीं करते, बल्कि जो आपका एडवर्ब होता है वो इटसेल्फ पूरा वर्ड चेंज हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल वेल, और इसकी कंपैरेटिव डिग्री क्या होगी? बेटर, और इसकी सुपरलेटिव बेस्ट. बैडली, वर्स, वर्स्ट. मच, मोर, मोस्ट. एडवर्ब्स एंडिंग इन वाई, ऐसे एडवर्ब्स जो कि रेगुलर एडवर्ब्स हैं और उनके एंड पे वाई आ रहा है, आपने उनके साथ ई आर और ई एस टी ऐड करना है. आप क्या करते हैं? वाई को स्किप करके उसके साथ आई ई आर और आई ई एस टी ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट. इस अर्ली के एंड पे वाई था, हमने वाई को रिप्लेस कर दिया आई के साथ एंड देन ई आर एंड ई एस टी. On students book page 142 we have the exercises for comparative and superlative of adverbs. So the exercise 1 is to be done in your book. So अपनी lead pencil पकड़ लें, उसको sharpen कर लें, अपनी neat erasers पकड़ लें और let's begin. Complete these sentences using the comparative form of adverbs in brackets. आपको bracket में कुछ adverbs given हैं, आपने इन sentences में blanks को fill करना है उन एडवर्ब्स की अप्रोप्रिएट डिग्री को यूज करते हुए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सेंटेंस इज फ्रॉग कुड जम्प डैश देन अ गोटी. फ्रॉग कुड जम्प डैश देन अ गोटी एंड द एडवर्ब इज फार. अब यहाँ पे फ्रॉग और अगोटी की जंपिंग में कंपैरिजन है, सो हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे, फार के साथ ई आर ऐड करेंगे और वो बन जाएगा
Father. This is again an irregular adverb. बजाय इसके कि हम फार के साथ er ऐड करते और वो फारर बन जाता, फारर कोई वर्ड भी नहीं होता। फार की जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो होती है फादर। व्हाट इज दिस? फादर। सेकंड इज mongoose डांस डैश देन टर्टल। वेल की कंपैरेटिव डिग्री हम यहाँ क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि mongoose और टर्टल के डांस में कंपैरिजन है। वेल की कंपैरेटिव डिग्री क्या है? बेटर। थर्ड वन इज टर्टल डांस डैश देन एनीवन एल्स। बाकी सबसे स्लो टर्टल ने डांस किया, तो हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे? मोर स्लोली। मिस्टर जैकफ्रूट डांस्ड डैश देन मिस मैंगो एंड द एडवर्ब इज बैडली। अब यहाँ पे देन यूज हुआ है, कंपैरिजन है, सो बैडली का कंपैरेटिव हमने अभी अभी लर्न किया था, क्या है? वर्स। फिफ्थ वन इज मिस मैंगो वॉज ड्रेस्ड डैश देन मिस्टर पोटैटो। Miss Mango was dressed dash then Mr. Potato. Here is a comparison between the dressing of Miss Mango and Mr. Potato. And the adverb is smartly. अब हम smartly का comparative degree use करेंगे, वो क्या है? More smartly. Sixth one is snake danced dash then turtle. Quickly. अब क्विकली की हम कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे बिकॉज देन इज़ यूज्ड हियर एंड इट इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन स्नेक एंड टर्टल्स डांस। सो क्विकली की क्या आएगी कंपैरेटिव डिग्री? मोर क्विकली। सेवंथ वन इज द हमिंग बर्ड्स सैंग डैश देन द अदर बर्ड्स क्वाइटली एंड वी विल ऐड द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ दिस एडवर्ब क्वाइटली विच इज़ मोर क्वाइटली। आपने नोटिस किया कि हर वो एडवर्ब जिसका जो एंड है वो ली के साथ हो रहा है, जिसके एंड पे ली लगा हुआ है, उसके साथ हम मोर ऐड करते हैं। ये हमेशा ऐसे नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफन जो एडवर्ब्स हैं उनमें ऐसा ही होता है कि जो एडवर्ब्स ly के साथ एंड हो रहे होते हैं उनके साथ हम मोर ऐड करते हैं। लेकिन ये कंडीशन ब्रेक हो रही है हमारे नेक्स्ट सेंटेंस में, वेयर द सेंटेंस इज मिस मैंगो अराइव्ड डैश देन मिस्टर जैकफ्रूट एंड द एडवर्ब इज अर्ली एंड फॉर अर्ली वी हैव द कंपैरेटिव डिग्री अर्लियर। हैव यू डन दिस एक्सरसाइज ऑन योर बुक? That's good. Our next exercise is to complete this paragraph using the comparative superlative form of the adverbs in the brackets. आपको blanks के साथ brackets में कुछ adverbs given हैं, आपने उनकी appropriate degree के साथ इस paragraph को fill up करना है। Miss Mango was the early who to arrive the party, यानी कि Miss Mango party में सबसे late आई, तो सबसे late के लिए हम क्या word use करेंगे? Earliest. The other animals arrived dash than she did. Other animals arrived later than she did. Miss Mango danced dash than the other fruits. Miss Mango danced better than the other fruits. Mr. Jackfruit was not a good dancer, but Mr. Turtle danced the बैडली। द आ गया, इसका मतलब है कि वो सबसे बुरा डांस किया, तो सबसे बुरा के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? वर्स्ट। मिस्टर टर्टल डांस्ड द वर्स्ट। स्नेक डांस्ड क्वाइटली देन द अदर एनिमल्स। स्नेक डांस्ड मोर क्वाइटली देन द अदर एनिमल्स। द हमिंग बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट। द हमिंग बर्ड्स sang the sweetest or most sweetly. The monkeys drummed more noisily as the evening went on. All the animals began to dance faster. At the end, everyone said the mongoose had danced the best. Have you done this on your book? Okay. On the next page we have another topic which name is very difficult, and this is onomatopoeia. What is this?
एनामेटोपिया। एनामेटोपिया, दिस वर्ड मीन्स इमिटेट्स अ साउंड। इमिटेट्स अ साउंड मीन्स कि ऐसे वर्ड्स जो किसी भी साउंड को रिप्रेजेंट करते हों, उन वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? एनोमेटोपिया। फॉर एग्जाम्पल कुकू, बॉप, स्प्लैश एट्सेट्रा। ये क्या हैं? ये साउंड्स के नेम्स हैं। कुकू किसकी साउंड होती है? कुकू जो बर्ड होता है, कोयल, उसकी साउंड को हम क्या कहते हैं? कुकू। इसी तरह अगर हम कहें द क्रो कॉक्स, जो भी वर्ड्स साउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? एनोमेटोपिया। On the same page we have an exercise, match these words with a suitable phrase below. ओके, आपको यहाँ पे ब्लू बार में कुछ वर्ड्स गिवन हैं और आपने बताने हैं कि ये वर्ड्स एक्चुअली कौन सी साउंड्स हैं। सबसे पहले यहाँ पे रिटन है एंड द साउंड्स आर बैंग, क्रैश, पॉप, क्रंच, क्लिक, बुज, हिस, वैक, ग्रो। ओके, एंड द फर्स्ट इज बीज इन द बीहाइव। बीज की साउंड क्या होती है? जो शहद की मक्खी होती है उसकी साउंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीज इन द बीहाइव, उनको हम क्या कहते हैं? बुज। बीज की साउंड को क्या कहते हैं? बुज। बुज इज नॉट एनी वर्ड और एक्शन और नाउन, दिस इज द एक्चुअली नेम ऑफ अ साउंड। सेकेंड इज अ ग्लास फॉलिंग ऑन द फ्लोर। एक ग्लास जब फ्लोर पे गिरता है तो उसका जो साउंड पैदा होता है उस साउंड को क्या कहते हैं? क्रैश। क्रैश, कोई भी जो शीशा, कोई भी जो ग्लास है जब वो टूटता है उसकी जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको कहते हैं क्रैश। अ फियर्स डॉग। अ फियर्स डॉग, एक डॉग की साउंड क्या होती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है? ग्राउल। अ बलून बर्स्टिंग, कोई भी बड़ा सारा धमाका, जब बलून जिस तरह से बर्स्ट होता है तो कौन सी साउंड आती है? उस साउंड को हम कहते हैं पॉप। अ हंटर शूटिंग अ गन, जब कोई हंटर गन को शूट करता है तो बहुत बड़ा धमाका होता है, उसको क्या कहते हैं? बैंग। अ क्रिकेटर हिटिंग द बॉल, जब एक बैट के साथ किसी बॉल को हिट किया जाता है तो जो साउंड टिक की जो प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? बैक। सेवंथ इज अ कंप्यूटर माउस। कंप्यूटर के माउस को जब आप यूज़ करते हैं तो उस को आप फिंगर के साथ जब यूज़ करते हैं, उनका माउस का बटन प्रेस करते हैं तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसको क्या कहते हैं? क्लिक। अ डॉग ईटिंग अ बोन, जब आप कोई चीज़ खाते हैं, जिस तरह अगर डॉग बोन खा रहा हो तो एक आवाज़ आती है। आप लोग जब लेज़ खाते हैं या स्लांटी खाते हैं तो एक आवाज़ आती है, उस आवाज़ को, उस साउंड को क्या कहते हैं? क्रंच। So these are the words actually onomatopoeia. Did you understand? Okay, now let's discuss our today's homework, and you have to write your diary first. In your diary you will write down subject, date, and your homework is from students book page number 143. You have to do question number 2 and 3. Question number 2 and 3. 2 is choose 4 of the words and write each one in a sentence. आपने इन साउंड वर्ड्स में से 4 पिक करने हैं और उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। थर्ड इज वी ऑफन यूज एनोमेटोपिया टू डिस्क्राइब द साउंड एनिमल्स। राइट अ लिस्ट ऑफ 6 एनिमल्स नॉइस। फॉर एग्जाम्पल, जो डॉग होता है उसकी साउंड होती है वूफ, जो काऊ होती है उसकी साउंड होती है मू, जो कैट होती है उसकी साउंड होती है म्यू। मैंने आपको 3 साउंड्स बता दिए हैं, बाकी 3 साउंड्स आप खुद सोच के फाइंड आउट करके अपनी इंग्लिश होमवर्क नोटबुक पे लिखेंगे। देन राइट अ रिव्यू ऑफ द पोएम द कोकोनट ग्रूव, सेट इट आउट लाइक। ओके, इसका आप रिव्यू लिखेंगे। टाइटल क्या है? ऑफ कोर्स द नेम ऑफ द पोएम, देन नेम ऑफ द पोएट जो कि पोएम के एंड पे गिवन है, व्हाट द पोएम इज अबाउट, ये किसके बारे में है। आपने जब आपने क्वेश्चन आंसर्स किए थे तो वहाँ से उनके आंसर्स में से आपको इस बात का आंसर मिल जाएगा कि व्हाट दिस पोएम इज़ अबाउट। देन फीचर्स ऑफ द पोएम्स, फॉर एग्जांपल राइम्स हैं, इसमें मेटाफर्स हैं और जो भी फीचर्स इसमें यूज़ हुए हैं।
उसके बाद व्हाट आई लाइक अबाउट द पोएम, आपको सबसे अच्छा इस पोएम में क्या लगा, एंड योर फेवरेट लाइन इन दिस पोएम। इस फॉर्मेट में आप इसका रिव्यू अपनी इंग्लिश होमवर्क नोटबुक में लिखेंगे और फ्रॉम वर्क बुक यू हैव टू डू पेज नंबर 85। ओके ग्रेड 5, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।